پر ملک کی تاجر اور سرمایہ برادری کا اعتماد کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 95,300 پر پہنچ گیا۔ پاکستان کا اکتوبر میں بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ اکتوبر کے مہینے میں بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ $34 کروڑ سرپلس رہا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ $28 کروڑ خسارے میں تھا۔ ستمبر اور اگست میں 2024 میں بالترتیب $86 ملین اور $29 ملین سے سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک پاکستانی فوڈ مصنوعات کی عالمی سطح پر ڈیمانڈ میں اضافہ۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں پاکستان کی فوڈ برآمدات $2 ارب 36 کروڑ سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں۔ ان فوڈ آئٹمز میں چاول، چینی اور سبزیاں سر فہرست ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف جلد معاشی روڈ میپ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اقتصادی اشاریہ درست سمت میں گامزن، مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر IMF کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان امریکہ نالج کوریڈور پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ علاقائی ترقی و خوشحالی کے لیے امن کا قیام ضروری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے صحت کے شعبے میں بہتری ناگزیر ہے۔ دنیا میں بہترین شعبہ ڈاکٹریٹ کا شعبہ ہے۔ پارلیمنٹ ہیلتھ سیکٹر کے لیے مزید اقدامات اٹھائے گی۔ ہمیں مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اگلی نسل کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اسلام آباد میں کانووکیشن سے خطاب۔ ملک کے 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز۔ درخواست کے ہمراہ 2 لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے۔ دوسری قسط قراندازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ بقیہ واجبات 1 تا 10 فروری ادا کرنے لازمی ہوں گے۔ سرکاری اسکیم کے تحت 89,605 جبکہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی 5,000 نشستیں مختص۔ بیرون ملک سے یکمشت ادائیگی کرنی ہوگی۔ سرکاری حج پیکج میں فضائی ٹکٹ، کھانا، تربیت، مکتب اور ویکسین شامل۔ بچوں کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تشدد ان کی شخصیت اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ بچوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کا تدارک کیا جائے گا۔ پاکستان کا پہلا ورچوئل چائلڈ سیفٹی سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید فعال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بچوں پر تشدد، استحصال اور بدسلوکی کے تدارک اور بحالی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ الیکشن ٹرائبونل میں انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے اپیلوں پر سماعت۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مخالف امیدوار ظہیر عباس کھوکھر کے وکیل نے تاریخ مانگ لی۔ ہمارے وکلاء کی تیاری مکمل تھی اور تمام دستاویزات بھی موجود تھیں۔ مخالف پارٹی کے پاس کوئی شواہد یا ثبوت نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس شواہد ہوتے تو ظہیر عباس کھوکھر نے تاریخ کیوں مانگی؟ پہلے کیس کرو پھر عدالت سے بھاگ جاؤ، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی ورکرز اور رہنماؤں کے مقدمات کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی حاضری کے حوالے سے سپرنٹنڈنٹ اٹیالہ جیل سے رپورٹ طلب۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ حماد اظہر، مراد سعید، فاروق حبیب، واسق قیوم اور دوسرے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ کی تعمیلی رپورٹ طلب۔ مقدمات احتجاج اور توڑ پھوڑ کے باعث انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہیں۔ وہ ہماری
ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں یا ان پہ جو ہے وہ وار کیے جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب ہمارے ملک کے محافظوں پہ اس طرح کا حملہ ہو تو یہ پورے ملک کے لیے فکر کی بات ہے، اور اس سے جو ہے پوری قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا آدمی حرکت نہ دوبارہ کر سکے۔ فوجی ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے ملک بچائے گا، یہ کسی کو حق دینا نہیں چاہیے۔ پاک فوج کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر کوئی حملہ کرے، ظاہر سی بات ہے وہ تو دہشت گردی کی اس پہ دفعات لگیں گے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کی کوئی وجہ یا مقصد نہیں، ملک کے محافظوں پر حملہ لمحہ فکریہ ہے۔ 9 مئی جیسے واقعات عوام اور افواج کا حوصلہ پست کرنے کی کاوش ہے۔ پاک فوج ہمارے ملک کی خیر خواہ اور محافظ ہے۔ 9 مئی کے کردار آرمی ایکٹ کے تحت سزا کے حقدار ہیں۔ سانحہ 9 مئی پر عوام کا رد عمل۔ SIFC کی کوششوں سے پاکستان کی دفاعی صنعت عالمی سطح پر استحکام کی جانب گامزن۔ دفاعی صنعت کے فروغ کے لیے کل سے ایکسپو سینٹر کراچی میں 4 روزہ بین الاقوامی نمائش کا آغاز۔ اسلحہ، ٹینک، جنگی طیاروں، آبدوزوں اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سمیت جدید اور روایتی دفاعی ساز و سامان کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ترکیہ، ایران، یمن، چین، بھارت، جاپان، ملائیشیا، سنگاپور سمیت دیگر ممالک شرکت کریں گے۔ انیس سو 71 کی پاک بھارت جنگ تاریخ میں ایک سیاہ باب، خطے میں دہشت گردی پھیلانے میں بھارتی کردار نمایاں رہا۔ 1971 میں بھارت نے مکتی باہنی جیسی دہشت گرد تنظیم کو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف حملوں میں استعمال کیا۔ دہشت گرد مکتی باہنی نے پورے ملک میں آگ لگائی، چٹاگانگ میں سرکٹی لاشیں ہم نے خود جمع کی۔ ہمارے 6 سے 7 لاکھ افراد آج بھی وہاں پاکستان کا جھنڈا لگائے بیٹھے ہیں۔ بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے محمد علاؤالدین کی آپ پی پی۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری جاری، 100 سے زیادہ فلسطینی شہید، شہداء اور زخمیوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ شمالی غزہ میں جھڑپوں میں 2 یہودی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی حملے، 2 طبی کارکنوں سمیت 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ سعودی عرب کی غزہ میں سکولز اور اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا پر بمباری کی شدید مذمت۔ غزہ میں نسل کشی کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے، پوپ فرانسس کا مطالبہ۔ بلوچستان کے حلقہ پی بی 8 سے بے میں ضمنی انتخابات، پیپلز پارٹی کے سردار زادہ میر کوہیار خان ڈومکی نے ضمنی الیکشن جیت لیا۔ صوبائی اسمبلی کی یہ نشست سابق رکن سردار سرفراز ڈومکی کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ سردار زادہ میر کوہیار خان ڈومکی نے 35,716 ووٹ لیے۔ آزاد امیدوار میر اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے سکے۔ پی بی 8 سے بی کے ضمنی الیکشن میں 22 امیدوار میدان میں تھے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور فلم ساز پرویز ملک کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں متعدد یادگار فلمیں تخلیق کیں۔ بہترین ہدایتکاری پر 1992 میں انہیں حکومت کی جانب سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ انہوں نے بہترین فلم ڈائریکٹر کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ 18 نومبر 2008 کو پرویز ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ راولپنڈی ڈویژن میں اسموگ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری، راولپنڈی ڈویژن کے تمام تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری۔ تعلیمی ادارے کھولنے کی سفارش کمشنر راولپنڈی نے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری پر کی تھی۔ آسٹریلیا کے خلاف تیسرے اور آخری T20 کرکٹ میچ کے لیے پاکستانی پلینگ 11 کا اعلان۔ کپتان محمد رضوان اور نسیم شاہ آرام کریں گے۔ سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ حسیب اللہ خان اور جہادات خان پلینگ 11 میں شامل۔ تیسرا میچ آج ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1 بجے سے PTV سپورٹس HD پر دیکھیے گا براہ راست۔
वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर ने ATP फाइनल्स टाइटल जीतने वाले पहले अतालवी खिलाड़ी का एजाज़ अपने नाम कर लिया। सीजन के इख्तितामी इवेंट के फाइनल में जैनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को स्ट्रेट सेट्स पर शिकस्त दी। सिनर ने 6-4 और 6-4 से टाइटल अपने नाम किया। अतालवी खिलाड़ी ने ट्रॉफी के साथ $48,81,000 से ज़ायद की इनामी रकम भी हासिल की। स्पेनिश मोटरसाइकिल रोड रेसर जॉर्ज मार्टिन ने MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप का ताज अपने सर सजा लिया। बार्सिलोना में वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की इख्तितामी रेस इटली के फ्रांचेस्को के नाम रही। जॉर्ज मार्टिन तीसरे नंबर पर रहे। मार्टिन ने फ्रांचेस्को पर 10 पॉइंट्स की मजमूई बढ़तरी के साथ टाइटल अपने नाम कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेल की खबरों के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। मुल्क का बैरूनी करंट अकाउंट अक्टूबर में भी सरप्लस रहा है। इसके अलावा मुल्क की बरामदात में 22% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान के चावल, चीनी और सब्जियों की बैरूने मुल्क डिमांड में इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुल्की मईशत में बेहतरी के हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी ज़मीर अब्बास, स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओवरऑल मुल्की मौशी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। हुकूमत की मौशी पॉलिसियां और अनथक मेहनत आखिर रंग ला रही है। स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तान के एक्सटर्नल करंट अकाउंट के ताज़ा तरीन आदाद शुमार शाये किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान का एक्सटर्नल करंट अकाउंट जो है वो 34 करोड़ 90 लाख डॉलर जो है वो सरप्लस रहा है। इससे पहले सितंबर में 8 करोड़ और 60 लाख डॉलर सरप्लस था, जबकि अगस्त के महीने में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर ये सरप्लस रहा। तो काफी बेहतरी आई है पाकिस्तान के करंट अकाउंट बैलेंस में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि रवा माली साल के पहले 4 माह में फूड जो कंसर्न एक्सपोर्ट्स हमारे, उसमें भी तकरीबन 22% का इजाफा देखा गया है, जिसमें सरफहरिस्त चावल, चीनी और सब्जियां हैं। अगर चावल की अगर हम बात करें तो चावल तकरीबन इस 4 महीने में उसमें 58% ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा चावल ने अब तक तकरीबन $1 अरब से जायद जो है वो एक्सपोर्ट की जा चुकी है। चीनी में तकरीबन 413% इजाफा देखा गया और 10 करोड़ 80 लाख डॉलर की चीनी एक्सपोर्ट की जा चुकी है। पाकिस्तान के ये एक्सपोर्ट के नंबर हमारे ज़रिए ज़खायर को मुस्तहकम करने में काफी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और अब दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 578 पॉइंट के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 95,307 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियां हैं वो रंग ला रही हैं। इसके अलावा अगर इन पॉलिसीज का तसलसल जारी रहा तो हमारे मौशी आशारिये मजीद बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे और हमारी मुल्की मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मईशत के दुरुस्त समत में गामजन होने के बायस आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि IMF वफ्द के साथ हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल हुआ है। ये प्रोग्राम IMF का नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल और आवाम का प्रोग्राम है। शाहरुख शफी रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में आए IMF वफ्द के साथ गुफ्तगू हौसला अफजा रही। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात को सराहा गया। उन्होंने कहा कि IMF के साथ तयशुदा प्रोग्राम को कामयाबी से आगे बढ़ाएंगे। We were complimented in terms of how we have done it. इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। दिस इज पाकिस्तान प्रोग्राम व्हिच इज बीइंग हेल्प्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, फंडेड बाय द IMF। हम राइट साइजिंग कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की। 11 मिनिस्ट्रीज के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं।
ان کی امپلیمنٹیشن از انڈر وے. انہوں نے کہا میرے حالیہ دوروں میں مختلف عالمی ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ تعمیری گفتگو ہوئی. ٹیکس نیٹ میں اضافہ ناگزیر ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل فوری توجہ طلب ہیں. انہوں نے کہا چارٹر آف اکانومی کو وسعت دیتے ہوئے چارٹر آف انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم نے سب نے کنٹریبیوشن کرنی ہے, whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether it's agriculture. اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. 2047 میں جب یہ 300 بلین سے انشاءاللہ $3 ٹریلین اکانومی ملے گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا $500 ملین کا آلریڈی ایک لون ڈسپرس ہو چکا ہے, جو ہمارا کلائمیٹ اس وقت ایمرجنسی ہے. اینڈ دین آف کورس ڈی کاربنائزیشن وچ از ایئر پولوشن. آپ ان ٹاپکس پہ اسی ارجنسی کے ساتھ یہ میٹنگز کال کریں. انشاءاللہ آپ کی مدد سے we will be into the Committee of Nations sooner than later. انہوں نے کہا ہمیں وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے عوام کو صحت, تعلیم اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف جلد معاشی روڈ میپ عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا جا سکے. شاہ رخ شفیع, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ انتشار کی سیاست سے ملک ترقی نہیں کرتے. ملک کی معیشت کو صرف امن اور استحکام سے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام USAID کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ علاقائی ترقی و خوشحالی کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے. حکومتی اقدامات کی بدولت ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے 5 A's کا ماڈل پیش کیا گیا ہے, جس میں برآمدات, ڈیجیٹل پاکستان, گرین توانائی, ماحولیاتی تحفظ اور ترقی کے مساویانہ مواقع کے لیے اقدامات شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ نالج کوریڈور پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا ہے کہنا کہ طبی شعبے سے وابستہ افراد عوام اور مریضوں کے لیے امید کی کرن ہوتے ہیں. صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے صحت کے شعبے میں بہتری ضروری ہے. کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے کانوکیشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ CPSCP کئی دہائیوں سے طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے. امید ہے مستقبل میں بھی اپنی خدمات کا تسلسل برقرار رکھے گا. انسانیت کی خدمت کر کے جو خوشی اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سردار ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ ہیلتھ سیکٹر کے لیے مزید اقدامات اٹھائے گی. ہمیں مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اور حج درخواستوں کی وصولی آج سے شروع ہو گئی ہے. درخواست کے ہمراہ 2 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے, جبکہ 1 سے 10 فروری تک باقی حج واجبات ادا کرنے لازمی ہوں گے. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق دوسری قسط قرعہ اندازی کے بعد وصول کی جائے گی. ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی کی جائے گی. سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 89,605 مختص ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی 5,000 نشستیں مختص ہیں. بیرون ملک سے امریکی ڈالرز میں یکمشت ادائیگی کرنا ہوگی. وزارت کے ڈیش بورڈ پر بینکوں کی سیکٹرز برانچوں کی کارکردگی کو براہ راست مانیٹر کیا جائے گا. خواتین ناظمین حج سرپرست کی اجازت سے قابل اعتماد گروپ کے ساتھ بغیر محرم کے روانہ ہو سکیں گی. اضافی سہولیات میں الگ فیملی رومز, قربانی کی سہولت دستیاب ہے. سرکاری حج پیکج میں فضائی ٹکٹ, کھانا, تربیت, مکتب, ویکسین شامل ہے. ترجمان کے مطابق شدید نوعیت کے پیچیدہ امراض کے حامل افراد کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی. ایڈوانس سٹیج کی حاملہ خواتین سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گی. 12 سال سے کم عمر بچے سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گے. درخواست گزاروں کو حج ہیلپ لائن ویب سائٹ, موبائل ایپ اور آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رہنمائی میسر ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان شامل کرتے ہیں, جنہوں نے بچوں پر تشدد, استحصال اور بدسلوکی کے تدارک اور بحالی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بچے میری ریڈ لائن ہیں اور ان کے خلاف ہر قسم کے تشدد کا تدارک کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بچوں کو صاف ستھرا اور محفوظ ماحول فراہم کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچوں پر تشدد ان کی شخصیت اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا پہلا ورچوئل چائلڈ سیفٹی سینٹر قائم کیا گیا ہے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید فعال کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دیہی خواتین لائف سٹاک پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے کے تاریخی پیکج کا اعلان کیا ہے. جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع سے تعلق رکھنے والی 11,000 نادار خواتین لائف سٹاک پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں گی. اس منصوبے کے تحت نادار دیہی خواتین کو باعزت روزگار کے مواقع میسر آئیں گے.
नाजार देही खवातीन गाय और भैंसे पालकर रोजगार कमा सकेंगी। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, कोटदू, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान की देही खवातीन को गायें और भैंसें दी जाएंगी। अपने एक बयान में मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब की देही खवातीन की माली खुद मुख्तारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा ज़राअत ने किसान कार्ड्स की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी है। महकमा ज़राअत को पोर्टल के जरिए किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरख्वास्तें मिली थी। महकमा ज़राअत के तर्जुमान के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब ने 4,87,000 दरख्वास्तें मंजूर की, जबकि 3,60,000 से ज़्यादा किसानों ने कार्ड्स भी वसूल किए, जिनसे अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है। किसान कार्ड के जरिए पंजाब के किसान 2600 रजिस्टर्ड डीलर से गंदम के लिए बिलासूद ज़रई मदाखिल हासिल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता उल्लाह तारड़ ने कहा है कि ज़हीर अब्बास खोखर अदालत से फरार चाहते हैं। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे, इसीलिए अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। PTI रहनुमा ज़हीर अब्बास खोखर की जानिब से अपने खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दी गई दरख्वास्त में तारीख लेने पर रद्द-ए-अमल देते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज मेरे बुकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। हमारे बुकला की मुकम्मल तैयारी थी और तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थी। अगर उनके पास शवाहिद मौजूद थे तो ज़हीर अब्बास खोखर ने तारीख क्यों मांगी? बार बार तारीखें मांग कर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि ज़हीर अब्बास ने अगर मेरी कामयाबी को चैलेंज किया है तो अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे? पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI वर्कर्स और रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने बानी PTI की हाजिरी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर दी है, जबकि अली नवाज अमान, आमिर मुगल और दीगर गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने केस की समाअत करते हुए हम्माद अजहर, मुराद सईद, फर्रुख हबीब, वासिक कुयूम और दीगर गैर हाजिर मुलजमान के वारंट के तामीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने थाना CTD, थाना संगजानी, थाना रमना में केसेस की समाअत 2 दिसंबर तक, जबकि थाना गोलड़ा और भाराकाऊ में दर्ज मुकदमात की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तमाम मुकदमात एहतजाज और तोड़ फोड़ के बायस इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज हैं। सानह 9 मई पर अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुल्क के मुहाफिजों पर हमला लम्हा फिक्रिया है। पाक फौज हमारे मुल्क की खैरख्वाह और मुहाफिज है। उन्होंने कहा कि 9 मई के किरदारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। कतई मतलब कि मकसद नहीं है कि वो हमारे फौजी तनसीबात पे हमला करें या उन पे जो है वो वार किए जाएं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी एक तो फौजी तनसीबात पे हमला हुआ है और जो कि हमारे मुल्क के मुहाफिज होते हैं, तो जब हमारे मुल्क के मुहाफिजों पे इस तरह का हमला हो तो ये पूरे मुल्क के लिए फ़िक्र की बात है और इससे जो है पूरी कौम का मोरल डाउन होता है, इसमें तकसीम पैदा होती है। उससे बेहतर ये है कि बैठें, पहले समझें चीज़ों को, सोशल मीडिया का ऐसा गलत इस्तेमाल ना करें और सोच समझ के जो भी कहना है वो कहें। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा आदमी हरकत ना दोबारा कर सके। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फौजी हमारे मुल्क का खैरख्वाह है, वो हमारे मुल्क बचाएगा, ये किसी को हक देना नहीं चाहिए। जो हमारे इदारों पे देखें, पाक फौज का जो इदारा है उसके ऊपर कोई हमला करे, जाहिर सी बात है वो तो दहशतगर्दी की उस पर दफात लगेंगी। सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ, बहुत ज़्यादा, जितने मैं कहूँ उतना कम है। उसकी वजह ये है कि जब ये सानिया हो रहा था, एक हजूम था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पुलिस थी, काफ़ी लोग थे, हमारे इदारों के यहाँ पे लोग थे और PTI के कारकुन यहाँ पे मौजूद थे और लेबोरेटरी सारा बंद था। 9 मई वाला जो वाकया हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम। जो लोग इसमें मुलविस थे, कोई भी था, पाकिस्तानी कोई भी था, चाहे बाहर का था, जो पाकिस्तानी था या PTI का था, जिस जमात का भी हो, आर्मी है, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं हमें। आप रात को नींद सोते हैं, मैं भी सोता हूँ सुकून से। वजह क्या है? आर्मी की वजह ये, ठीक है, हमारे मुहाफिज हैं वो। पाकिस्तान की दिफाई सनत के फ़रोग़ के लिए वज़ारत दिफा और डेपो की ताउन से 19 से 22 नवंबर तक कराची में बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का मकसद पाकिस्तान की दिफाई सनत को आलमी सतह पर मुस्तहकम करना है। इस नुमाइश में जदीद और रवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, जो पाकिस्तान की सनती तरक्की की अक्कासी करता है। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोश, ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं।
आइडियाज़ की टीम जदीद सहूलतों और सॉफ्टवेयर के जरिए नेटवर्किंग को मौसर तरीके से हम आहंग करती है। नुमाइश में एशिया, मशरक़ वस्ता और जनूब मगरबी एशिया के अहम ममालिक शरीक होंगे। SIFC का मकसद पाकिस्तान की दिफाई सनत को आलमी सतह पर उजागर करना है, जिससे कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। खत्ते में हमेशा से दहशतगर्दी को फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुष्टपनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया और मासूम लोगों खुसूसन बिहारी कम्युनिटी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर मजालिम ढाए, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन भी इन्हीं मुतासरा पाकिस्तानियों में से हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत व अजमत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अलाउद्दीन अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी थी। हम बहुत मुश्किल से अपने लोगों की हिफाजत करने में कामयाब रहे। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से। इजरायली फौज की मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इजरायली फोर्सेस ने गाज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी के नतीजे में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 150 ज़ख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रहायशी टावर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 72 अफराद शहीद और 20 ज़ख्मी हो गए। मलबे तले बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं, जबकि मशीनरी ना होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहदा और ज़ख्मियों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। शिमाली गज़ा में झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। उधर इसराइली लड़ाका तैयारे लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। बमबारी के नतीजे में हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने कहा है कि गजा में नस्ल कुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। गजा में नस्ल कुशी के हवाले से अपनी नई आने वाली किताब के इक़्तिबासात पर तबसरे में पोप फ्रांसिस ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इजरायली फ़ौज की कार्रवाइयों के नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आने की तहकीकात करे। पोप फ्रांसिस इससे कबल इजराइल के हाथों शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए भी आवाज़ उठा चुके हैं और लेबनान पर इजरायली हमलों को इखलाक से आरी करार दे चुके हैं। दुनिया की बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का इजलास आज से ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में शुरू हो रहा है। इजलास में गुर्बत के खात्मे, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम आलमी उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत दीगर आलमी रहनुमा रियो डी जेनेरो पहुँच चुके हैं। इजलास की मेज़बानी ब्राज़ील के सदर लोला डी सिल्वा करेंगे। ब्राज़ील के शहर साओ पोलो में कुछ रोज़ धमाकों के बाद इजलास के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। यूक्रेन और रूसी अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। रूसी फौज ने यूक्रेन के शिमाली मशरकी इलाके सोमी में 9 मंजिला रहायशी इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया है। रॉयटर्स के मुताबिक हमले में 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं।
यहाँ पर खबर आपको देंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है, जिन्होंने मुतनाज़िया जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया इंदरावी और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की कुर्बानियों को सराहा है, जो तनाज़ा कश्मीर पर अपने गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ की वजह से बरसों से कैदोबंद की सौबतें और तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के तिहाड़ और मकबूजा जम्मू कश्मीर की कोट भलवाल जैसी बदनाम ज़माना जेलों में नज़रबंद अफराद को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और उनकी बिगड़ती हुई सेहत के बावजूद उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद से महरूम रखा जा रहा है। हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ार का नोटिस लें और उनके तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रिहाई को यकीनी बनाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह दफ़ा 370 की बहाली के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मैं इधर रहता हूं, आप इधर आ जाएं थोड़ा सा। अच्छा We have two training as one is missing out. He wanted to give a chance to Hasibullah, and then Naseem is resting, and Jandar is making debut. And the decision to bat? Yeah, I think it's a good wicket. We just want to put up a good total on the board and then try to restrict them. Best of luck, skipper. Thank you very much. Josh, any changes to your side? Nah, same team. How are you feeling about the overall white ball series? The bowls were fantastic last start. Yeah, they've been brilliant. Obviously 2-0 up, so we want to keep the momentum going and put in a good performance tonight. Key to bowling here? Look, it's a pretty good wicket, so we'll just see how it goes, but I think early wickets is key. Good luck, skipper. Thank you. There we go. So from the middle of the news here, Pakistan has won the toss under their new captain and they have elected to bat. Head and Shoulders अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब पंजाब में भी थे और जब वो यहाँ पर हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पहली बात ये की थी कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है, चाहे वो तालीम के मैदान में है, चाहे वो फ़नी तालीम के मैदान में है, चाहे वो आईटी में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, उसको आगे आने के लिए जिस तरह के वसाइल चाहिए वो वसाइल हुकूमत प्रोवाइड करेगी। तो आज मैं ये समझता हूँ कि जो एफ़र्ट्स एहसान साहब ने आकर की और एक जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो हमने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का अहया किया और इस तरह के हम दूसरे जो स्टेप्स ले रहे हैं, पाकिस्तान आज तुर्कमानिस्तान से तुर्कमानिस्तान में, जमैका में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह फतूहात के झंडे गाड़ कर आया और ख़ास तौर पर एहसामुल हक साहब ने जो एफ़र्ट की और वाइल्ड कार्ड एंट्री जो तुर्कमानिस्तान में दिलवाई, तो वहाँ पे हमारा बच्चा जो है वो अवार्ड लेकर आया। हम ना सिर्फ इनको इनकरेज करेंगे बल्कि आज जो मेरी गुफ्तगू हुई है टेनिस के मैदान में जिस तरह की भी इनको सपोर्ट चाहिए वो हम इनको सपोर्ट दिलवाएंगे। और हम जो स्पोर्ट्स कल्चर के अहया की बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट जो है उसका फ़ेज़ 2 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 21 को जो इनॉग्रेशन हो रही है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड की, उसके अंदर हमने इस दफ़ा जिन गेम्स को रखा है इंशाल्लाह ताला मेरी आज बात हुई है, हम आइंदा आने वाले इवेंट्स में टेनिस को भी जो है उसी तरह शामिल करेंगे और टैलेंट हंट के अंदर टेनिस को भी साथ लेके जाएंगे। 21 को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, 5000 से ज़्यादा एथलीट शरीक होने जा रहे हैं और मैंने एहसान साहब से और इनकी टीम से भी रिक्वेस्ट की है कि ये वहाँ पर हमारे साथ आएँ, क्योंकि अब जहाँ पर मैं पहले कहा जिस तरह कि जहाँ पर हमारा फोकस तालीम पे है, फ़नी तालीम पे है, वहाँ पर उतना ही फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर भी है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान से अब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था स्टॉक एक्सचेंज 95,000 से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी हैं। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स
बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी हैं। पाकिस्तान जो है वो हर चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। जो SCO कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले हुई थी, दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो चुका है, इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही हैं। इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का फ़ायदा हमने स्पोर्ट्स के अहया के साथ करके एक पाकिस्तान का पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज, जो एक्चुअल इमेज है, वो दुनिया को दिखाना है। और मैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ हमारे रेहान साहब और बाकी टीम, उनको भी इस बात पर अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब मिलकर चल रहे हैं। खुर्रम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारा रिजॉल्व बहुत क्लियर है कि हमने हर फील्ड के अंदर एक्सेल करना है, पाकिस्तान का असल कलर दुनिया को दिखाना है। और मैं आज एहसान साहब से बात कर रहा था कि अभी हमें 4 इवेंट्स मिलते हैं। एहसान साहब के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये इवेंट्स 8 तक सालाना लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। खेल के मैदानों में नौजवानों की हौसला अफजाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, शिमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों ने मीरान शाह कैंट का दौरा किया और GOC से खुसूसी मुलाकात की। नौजवानों ने अमन व अमान ख़राब करने वाले इंतहा पसंद अनासर से सख्ती के साथ निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान नौजवानों के कलीदी किरदार और उनकी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई। नशिस्त के दौरान मुल्की सिक्योरिटी मसाइल और इनसे निपटने में नौजवानों की मरकजी किरदार और इसकी अहमियत को उजागर किया गया। नौजवानों ने इस अज़्म का इज़हार किया कि तमाम दस्तयाब वसाइल के सही इस्तेमाल से पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। नौजवानों ने पाक फौज की इस काविश को बेहद सराहा और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 से बिक अज़मनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के सरदार कोहयार खान डोमकी ने जीत लिया है। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक सरदार कोहयार खान डोमकी ने 35,665 वोट हासिल किए। सूबाई असम्बली की यह नशिस्त साबिक रुकन सरदार सरफराज डोमकी की वफात के बाद खाली हुई थी। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट ले सके। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन ऑफ कनाडा के ज़ेर एहतमाम बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर ननकाना साहब में समाजी तंजीम की जानिब से 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। रिपोर्ट करेंगे जावेद अहमद मुआविया। 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 1000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्ती भी मुआयना किया और उन्हें अद्वियात फराहम की, जबकि 200 से ज्यादा मरीजों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया गया। यहाँ पे सफेद मोतिया के ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अलावा जिन मरीजों को मेडिकल की जरूरत होती है उनको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। जिन लोगों को ऐनक की जरूरत होती है उनको ऐनकें दी जाती हैं। और जो लोग यहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकते या जिनके ज्यादा अमराज बड़े होते हैं उनको हम हॉस्पिटल लाहौर में बुला लेते हैं और वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इधर मैंने चेकअप करवाया, फ्री ऑपरेट हो रहा है और फ्री चेकअप हो रहा है। हमें खाना भी मिल रहा है और रैश भी मिली है। समाजी तंजीम की तरफ से गुज़श्ता 25 साल से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जहां आने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त तिब्बी मुआयने और इलाज के साथ साथ खाना और ऑपरेशन की सूरत में रहायश भी मुफ्त फराहम की जाती है। मेडिकल दवाइयाँ और खाना हर चीज़ जो हम फ्री देते हैं। जो सिख भाई हैं उनको भी बराबर की एक्सेस हासिल है यहाँ पर। पिछले साल मैंने करवाया एक आंख का ऑपरेट, अब दूसरी आंख का ऑपरेट यहाँ से करवा रहा हूँ। फ्री होता है हर चीज, खाना पीना रिहाइश अपना हर शहर की तरफ से। समाजी तंजीम की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का मकसद बैनुल मज़हब अमांगी का फरोग भी है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब बिला तफरीक रंग मजहब इंसानियत की खिदमत का दर्स देते हैं और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद का मकसद इसी पैगाम को आम करना है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्मसाज परवेज मलिक को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। उन्होंने अपने करियर में मुताद्दिद यादगार फिल्में तख्लीक की। उनकी फनी जिंदगी का अहाता किया है हसन नासिर सिद्दीकी ने अपनी इस रिपोर्ट में। कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले परवेज मलिक पाकिस्तानी फिल्मी सनत का वो गौहर नायाब है जिसने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए 60 की दिहाई में लॉस एंजलिस अमेरिका से फिल्म साजी की तरबियत हासिल की। फिल्म साजी की तालीम मुकम्मल करके 1963 में वतन वापसी पर उन्होंने फिल्मी करियर का आगाज मावन हिदायतकार से किया।
और बाद में फिल्म डायरेक्टर के तौर पर हीरा और पत्थर, अरमान, पाकीज़ा और एहसान जैसी कामयाब और मयारी फिल्में बनाई, जिनके मकबूल गाने अब भी ज़बान ज़दे आम हैं। बेहतरीन हिदायतकारी पर 1992 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदाती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उन्होंने बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। 18 नवंबर 2008 को परवेज मलिक 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको सैर कराते हैं लोक मेले की। लोक वर्षा इस्लामाबाद में सजा 10 रोजा लोक मेला अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। लोक वर्षा की गोल्डन जुबली के मौके पर इस्लामाबाद में सजाए गए खुसूसी लोक मेले में आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। ओपन एयर थिएटर में इख्तितामी प्रोग्राम हुआ, जिसमें लोक फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल मोह लिए। लोक मेले में मुल्क भर से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फनकारों को खूब दाद दी। पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इनको मिला के इन लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पवेलियन बनाए और उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुजाहरा किया, जिसमें लोग फ़न भी है, आर्ट भी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक कौमी यकजहती का एक अहम सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जो मेला देखने के लिए आए हैं और सारे पाकिस्तान के 4-5 सूबों आए हैं। मुख्तलिफ जो है ना लोग वो परफॉर्म कर लिया है। इधर आके मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय की और अच्छी अच्छी जगह थे, अच्छे अच्छे खाने थे, इधर हर चीज़ है, अच्छी जगह है, बेस्ट है। मेले के इख्तिताम पर सेक्रेटरी वजारत कौमी वर्सा हसन नासिर जामी ने फनकारों और दस्तकारों में इनामात तकसीम किए। लोक वर्षा की गोल्डन जुबली के हवाले से सजाए गए इस खुसूसी मेले से जहां अवाम को तफरीह के मौके मुयस्सर आए, वहीं पे कौमी हम आहंगी और इत्तेहाद का मुजाहरा भी देखने को मिला। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक आर्मी ने गिलगित में अपनी नौयत का एक मुनफरिद म्यूजियम कायम किया है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और सकाफती वर्से को महफूज करना है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी शाहीन सफ्तर। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और सकाफती विरसे को महफूज रखने और नई नस्ल को इससे रोशनास कराने के लिए GB म्यूजियम इंतहाई अहमियत का हामिल है। गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर बनाए गए इस पहले म्यूजियम में इलाके की कदीम तहजीब व तमद्दुन, रहन सहन, मुकामी फ़न व हुनर और नामवर हस्तियों के हवाले से मालूमात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया गया है। GB को हिस्ट्री को किसी ने समझना हो तो वो जस्ट 1.5 घंटे का इसका विज़िट करे। इससे बेहतरीन जगह GB को समझने के लिए मेरे नज़दीक कोई नहीं है। मुल्क के चारों सूबों से और जो हमारा इंटरनेशनल टूरिज़म आते हैं वो एक विज़िट करें इस म्यूज़ियम का, और इस म्यूज़ियम के को जिस तरह से अपग्रेड किया गया है, जिस तरह से इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में एक खूबसूरत इजाफा है। म्यूजियम में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के सियाहती मुकामात के बारे में मालूमात, जंगली हयात के नमूने और कदीम आलात, हर्ब व मौसीकी को भी खूबसूरत अंदाज में रखा गया है। GB म्यूजियम में गिलगित बल्तिस्तान की तारीख को एक ही जगह इकट्ठा किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाह इस म्यूजियम का ज़रूर विजिट करें ताकि उनको गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के बारे में बेहतर शनासाई मिल सके। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, रावलपिंडी डिवीज़न में स्मोक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया है। स्मोक में कमी को देखते हुए रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम तालीमी इदारों को कल से खोलने का फैसला किया गया है।
اس حوالے سے تحفظ ماحولیات ایجنسی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں راولپنڈی، جہلم، اٹک اور چکوال کے نجی سرکاری تعلیمی اداروں کو سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تعلیمی ادارے کھولنے کی سفارش کمشنر راولپنڈی نے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری پر کی ہے۔ لاہور میں فضا کو آلودہ اور شہریوں کو پریشان کن صورتحال سے دوچار کرنے والے سموک کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران سموک کی شدت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ باغوں کے شہر لاہور میں سموک کی شدت میں واضح کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود فضا ابھی تک مضر صحت ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق سموک کی موجودہ لہر بزرگوں اور بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو اینک اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق سموک کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی مختلف مقامات پر ریسٹورنٹس پر چھاپے مارے گئے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے اور ان کو سیل بھی کیا گیا، جبکہ شہر میں تمام ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مصنوعی بارش اور شمالی علاقہ جات سے آنے والی تیز ہواؤں کے باعث دھند اور سموگ میں کمی آئی ہے۔ سموگ اور دھند کی شدت کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے رات گئے موٹر ویز اور ہائی ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے سموگ کی صورتحال بہتر ہونے اور دھند کم ہونے کے بعد ان کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کے مطابق سموگ کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور سموگ کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مدثر خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ملتان آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دوسرا آلودہ ترین شہر ہے، تاہم موسم بہتر ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی ہے۔ ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ فرحان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ملتان میں آج کا موسم کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا؟ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید سردی کے بعد صبح اور شام کے اوقات میں شدید دھند میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملتان شہر کی اگر بات کریں تو ایئر کوالٹی انڈیکس آج خاص کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملتان شہر کے اندر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں۔ اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی تو رحیم یار خان کی اور لودھرا کی فضا ابھی تک گرد آلود ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن کیے گئے، جس کے بعد نہ صرف سکول بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی بند کر دیا گیا، جس کے بعد شہر میں ٹریفک کے دباؤ میں خاصی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اس طرح اگر ہم ریسٹورنٹس کی بات کریں تو شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے، اس کے بعد ٹیک اوے کی سہولت ہوگی اور رات 8 بجے کے بعد ہر طرح کی سرگرمی جو ہے وہ اس کو بند کر دی جائے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے، خاص طور پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 100 سے زائد بھٹے ہیں ان کو مسمار کیا گیا ہے، جبکہ انسداد اسموگ مہم کے تحت ماسک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صبح اور شام کے اوقات میں جو اہم شاہراہیں جو ہیں وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں جو ہیلتھ ایمرجنسی قائم کی، اس کے تحت ڈاکٹرز اور پیری میڈیکل سٹاف کی تمام قسم کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور تمام ہاسپٹلز کے اندر اسموگ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر سانس، دمے، آنکھوں اور چیسٹ انفیکشن کے جو مریض جو ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے بھی شہریوں سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اس موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور اپنے گاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ کریں تاکہ اس فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ جی بلتستان کے ضلع شگر میں موسم خزاں اپنے جوبن پر ہے، ہر طرف رنگوں کی بہار ہے، مختلف رنگوں کے پتوں نے علاقے کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے۔ گلزار شگری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وادی میں پتوں کے مختلف رنگوں نے علاقے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دی ہے۔ اس حسین موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سیاح یہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ سیاح یہاں گزرے ہوئے لمحات کو تصاویریں بنا کر یادگار بنا رہے ہیں۔ یہ شگر ہمیں بہت اچھا لگا، فرسٹ ٹائم ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ کہ اگر آپ ویدر کی بات کریں یہاں کے تو ناٹ سو کولڈ ناٹ سو ہاٹ، مطلب یہ کہ
टूरिज्म इस मौसम में कम होता है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी जगह है, इस टाइम आया जा सकता है। हम कराची से आए हैं यहाँ। वैसे तो हमें इनिशियली लग रहा था कि मौसम बड़ा सर्द होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ओवरऑल ग्रीनरी और जो ओवरऑल मौसम है ये काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली ऑटम के टाइम पे आया जा सकता है। ऑटम को देखने आए हैं हम लोग इस मौसम में। बहुत ही खूबसूरत है, पत्ते गिरे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बल्तिस्तान के चारों मौसम खूबसूरत और दिलफरेब हैं, लेकिन मौसम ख़ज़ा में दरख्तों पर मौजूद मुख्तलिफ रंगों के पत्ते इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर।